Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramani from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to discuss this topic. Here you can see the blood test report and medicines for malaria. Last classes already we discussed about the blood test and how we can find out the malaria, the parasite of malaria in blood, and we can diagnose the disease malaria. In this class, here you can see a report in your book. The page number is 69, and here you can see the report in details. Uh, this is the report from clinical pathological report, and this is the scheme of central government health scheme, and the name of patient is Rajat. His age is 11 years. He is 11 years old. He is he is suffering fever with chills and rigors. These all words are already discussed in the conversation that was discussed in last classes. फीवर दैट मीन्स बुखार विथ चिल्स मतलब बहुत ठंडक के साथ बहुत ठंडा लगता होगा उनको जिनको फीवर आता होगा जिनको जो मलेरिया पेशेंट है. रिगर्स दैट मीन्स कंटिन्यूसली सीवरिंग कांपते हुए शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण कांपने लगेगा और कंटिन्यूसली वो कांपने लगेगा और बहुत ज़्यादा हाई फीवर. दैट इज़ दोज ऑल वर्ड्स indicates the symptom of the disease malaria. So diagnosis ये है कि उनको मलेरिया हुआ है. And below the line here you can see bold letter written that is malarial parasite found in blood sample. In details you will read about it in higher classes. बट पैरासाइट दैट मीन्स कीटाणु जीवाणु कुछ ऐसा चीज़ें होते हैं कुछ ऐसा कंपोनेंट्स होते हैं जो पैरासाइट हमारे ब्लड के अंदर चले जाने में हमारे अंदर इस तरह की बीमारी फैल जाता है शरीर में और शरीर में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. Malarial parasite that's name is scientifically you can say Plasmodium vivax, and in details you will learn about it in your higher classes. But here you have to know about it that when in our blood parasite present, malarial parasites are present, then we are suffering from many symptoms such as high fever, shivering, rigors, chills, and weakness also. Many things we can suffer from it, and that is called as malaria. So how we can find out the malaria? At first you have to go to pathological clinic, and there they take blood from your finger and with a slide of glass, and at that after that they will test it with the help of a microscope. Already about it I discussed. Here you can see the doctor pathological doctor. She is looking the parasite in the blood with the help of microscope. After that such type of report made out, and there you can see the what is the problem, what type of parasite, what type of components in your blood due to those you are suffering from many symptoms, you are suffering from the diseases. So this is the report. You have to make a report just like it, but you have to make the report your on the basis of your own idea, and you will design personally the report with your idea. So uh, this this report will help you only making a report, another report, and that will be your report. Here you can see a colorful boxes, and here written medicine for malaria.
medicine for malaria, and above it you can see here written, look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? Absolutely, those words are malarial parasite, those words are fever with chills and rigors. There are many words from which we can find out, we can get the idea about malaria, that that person is suffering from malaria. So here यह जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। मेडिसिन फॉर मलेरिया, पहले क्या हुआ करता था हमारे देश में, कैसे लोग मलेरिया को झेलते थे, कैसे लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट करते थे, और आज के ज़माने में मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे हुआ करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंकोना, दिस इज़ ए प्लांट, this is a herbal plant. This is very important because recently you have known about the coronavirus, and at that time when lockdown process going on, at that time hydrochloroquine and quinine, the word, that that medicine is made from the bark of the plant, the herbal plant cinchona. So cinchona tree is very medicinal importance is very known in the world. So and that is found, that can be found in the hilly area of Darjeeling and Himalayan range. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water, which was given to patients. But uh, now medical science is very has been developed, and now tablets are made from the plant cinchona. So पहले क्या किया जाता था कि सिंकोना जो पहाड़ी क्षेत्र में मिलता था, वो एक प्लांट है, एक हर्बल प्लांट है, जिसका जो छाल होता है, दैट मीन्स बार्क, उसको बॉयल करके लोग बॉयल करने के बाद उस पानी का जो वेपर स्ट्रेन हुआ करता था, उस पानी से मलेरिया को ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अभी सिंकोना के बार्क से लोग क्या करते हैं, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप होने के कारण बहुत सारी कंपनियां हैं जो उससे टैबलेट्स बनाते हैं, और मार्केट में उसके दवा जो टैबलेट्स है वो मिल जाता है, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। तो इसके बारे में आगे की क्लासेस में हम पूछ सकते हैं, या फिर वर्कशीट में और क्लास टेस्ट में हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी पेड़ के जो छाल है जिससे लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट किया करते थे, और आज भी उसी से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इस तरह से डिज़ाइन करके बनाओगे। यहाँ एक नया टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, जो है एनीमिया। व्हाट इज़ दैट? ये डिस्कशन, अगर ये कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो इससे हम लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ एनीमिया क्या होती है। आरती, राजत, यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं, जास्किरात, ये सब कैरेक्टर्स क्या बातें कर रही हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आरती, पहले तो यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ए ब्लड टेस्ट डन। मैं भी एक ब्लड टेस्ट किया हूँ, आरती बोल रही है, बट दे टुक ए सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। ब्लड टेस्ट में पहले भी कहा था कि जो कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड जो कलेक्ट करते हैं पैथोलॉजिकल वाले, वो दो तरीक़े से करते हैं। कभी कभी आपकी उंगली में थोड़ा सा सुई चुभा करके उसमें ग्लास का स्लाइड होता है, उससे ब्लड को कलेक्ट करते हैं, और कभी कभी देखोगे कि फुल सिरिंज में ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो वो क्या टेस्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो पैथोलॉजिकल वाले को वो ये आइडिया है कि किस टेस्ट के लिए कितना ब्लड चाहिए, तो कभी कभी वो फुल सिरिंज ब्लड भी लेते हैं। तो द ब्लड टेस्ट स्वेट दैट आई हैड एनीमिया, और ब्लड टेस्ट से आरती को क्या पता चला कि उनको एनीमिया था। रजत बोला व्हाट इज़ दैट? रजत के लिए ये बहुत ही नया टर्म था, आपके लिए भी नया है, ये एनीमिया क्या है? तो आरती ने बोला द डॉक्टर सेड दैट देर इज़ लेस हीमोग्लोबिन। दिस इज़ ऑल्सो न्यू टर्म, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है, वो ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं,
एक तरह से कहा जाए तो हमारे पुरखों से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा बॉडी जो है या प्रकृति में जितना पेड़ का बॉडी हो, किसी जानवर का बॉडी हो, वो सभी चीज़ प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसी से बना हुआ है। हमारे अंदर तांबा, लोहा, हर चीज़ उपलब्ध है जो प्रकृति में है। तो इसीलिए कभी कभी सुनने को मिलती है कि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। ये जो कहावत है ये कहीं ना कहीं फिलॉसफिकली बहुत हद तक सच है कि हमारे बॉडी में लोहा भी है। ये सुन के आश्चर्य लगता है। तो हीमोग्लोबिन जो हमारे कणिका होते हैं, लोह कणिका होते हैं, वो हमारे ब्लड को, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे ब्लड लाल रंग के होते हैं और वो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसमिट करने में काम करते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आयरन के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। आयरन दैट मीन्स लोहा। तो अगर हमारे बॉडी में किसी कारण उसका कमी हो तो हमारे खून में जो लाल कलर का कणिका होते हैं उसका कमी हो जाते हैं और उससे हम एनीमिया कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। और आयरन इन द ब्लड, द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन्स टू गिव मे स्ट्रेंथ। उनको कुछ मेडिसिन भी दिया गया उसे रिकवर करने के लिए। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जगेरी। और उनको कुछ चीज़ स्पेशली खाने के लिए कहा, सजेस्ट किए डॉक्टर ने। डॉक्टर सजेस्टेड टू ईट जगेरी, अमला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पत्तादार कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पालक की साग, मेथी की साग, और भी बहुत तरह के लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। वो अगर हम टेक करेंगे, हमारे फूड आइटम्स के रूप में हम लेंगे, तो बहुत हद तक हम हमारे बॉडी में नेचुरल वे में हीमोग्लोबिन को बना सकते हैं और लोह कणिका को डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें आयरन होता है। जैसे मैं कभी कहा कि प्रकृति में हमारे आसपास में जो हम पेड़ पौधे या फिर जानवर देखते हैं उसमें भी हर चीज़, प्रकृति का हर चीज़ है जो प्रकृति में है। तो उससे हम, हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो तो हम नेचुरल वे में उस चीज़ों से, प्रकृति से उस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आरती ने ये सब कहा। नंसी ने बोला हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में कैसे आयरन हो सकता है, ये तो सच में आश्चर्यजनक बात है। लेकिन आयरन सिर्फ जिस फॉर्म में आप आयरन को देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी चीज़ का हथौड़ा देखते हैं, आप रेंज देखते हैं, उसमें आयरन होता है, लेकिन आयरन उस फॉर्म में तो हमारे ब्लड में नहीं हो सकता है। और आयरन को जब हम मिट्टी के नीचे से खोद के लाते हैं आयरन बनाने के लिए, उस समय भी उस फॉर्म में नहीं होते हैं, वो धूल जैसे होते हैं। तो ऐसे प्रकृति में चीज़ जो है, जैसे आप बर्फ़ को देखोगे तो आपको लगेगा ये कैसे पानी हो सकता है। फिर वो पिघल जाएगा तो पानी में बदल जाता है। फिर वो उसको गर्म करोगे तो वो उग जाता है, उग जा करके हवा में मिल जाता है। तब आपको लगेगा इसमें हवा में कैसे पानी हो सकता है, दिख ही नहीं रहा। तो प्रकृति में हर कंपोनेंट, हर चीज़ जो है वो अलग अलग रूप में मिल सकते हैं आपको। तो आयरन हमारे ब्लड के अंदर भी होता है, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं नेचुरल वे में। जैसे चना अगर हम सुबह सुबह डेली स्प्राउटिंग करके खाते हैं तो उसमें आयरन मिल सकता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में जगेरी जिसको गुड़ बोलते हैं, अमला, या फिर विटामिन सी वाले जितने फ्रूट्स हैं उसमें हमको आयरन मिल सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जसकीरत ने क्या बोली कि देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी दिया गया। सो देन, ये तो रजत हंस दिया उसमें। सो देन यू एट आयरन और व्हाट, इसलिए आयरन के लिए इतना सोच रहे हैं। आरती, आरती क्या बोली, सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज। I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. सच में वो जब लॉट ऑफ वेजिटेबल्स लेना शुरू किए या फिर जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिए थे, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल फिर से टेस्ट जब किया तो हीमोग्लोबिन लेवल उनका बढ़ चुका था। तो ये हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। उसमें से हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे ब्लड, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग की देखने को मिलती है। और हीमोग्लोबिन में वो आयरन कणा होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसमिट करते हैं पूरा बॉडी में,
वो काम हीमोग्लोबिन की करते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में वो चीज़ का कमी हो तो उनके आँख में थोड़ा सा फेड लगता है, आँख, उनके मुंह थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो जितना थोड़ा सा वाइटनेस आ जाते हैं, मतलब वो उनके अंदर ब्लड की कमी, ऐसे लोग नेचुरली बोलते हैं कि इनके अंदर ब्लड की कमी है, लेकिन ब्लड की कमी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्लड के अंदर जो कणिका होते हैं, लोह कणिका होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिस कारण उसे इस तरह से हम उसको कह सकते हैं, एक टर्म दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं एनीमिया। तो आगे की क्लास में हम एनीमिया के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आज आपको जो काम करना है, आपको एक ब्लड रिपोर्ट बनाना है जो कि मलेरिया रिगार्डिंग हो। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।